তুমি কৃপা করি সুধাবিয়া আর তুমি কৃপা করি সুধাবিয়া দেহ কৃষ্ণ ধনে দেহ কৃষ্ণ তুমি কৃপা করি সুধাবিয়া দেহ কৃষ্ণ ধনে দেহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ কে পাবো তোমার সাপোর্টে আছে কৃষ্ণ সে তোমার পাবো আমি তোমার কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কৃষ্ণ কৃষ্ণ আমি তোমার কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আমি কি রূপে পাইব সেবা ময়ূরাচলা কি রূপে পাইব সেবা ময়ূরাচলা Shri Guru Vaishnava
कृपा करो वैष्णव ठाकुर
कृपा करो वैष्णवतारो कृपा करो वैष्णवतारो अभी तो वैष्णव दिखाई दे Vishnu
So I've been cut off that. I have to speak about it right now. So what an opportunity to speak about my Senya's Guru, Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj. This is the last experience I had with him when we were on 16th, is it the last place? So I remember we were first in a smaller place, Sector 16, not the one, there was one before, Sector 16 also. So as we were there, suddenly Madhava Priya said, "We are moving, we have a place." And I said, "Let's go and see it." I came with him and I said, "But this place, how can you move so suddenly?" He said, "We are moving." This is the ingenuity of my Indian God brothers. And within maybe 3 days, 4 days, the place was ready. And we moved. But the moment we moved there, Maharaj Gurudev was very ill. So he has to be taken to the hospital. So he was in the hospital. And at that time, I was quite new to him. So I will just go and watch, Narottam and others will be cooking. Madhava Priya will be on his side. And Bhakti Vedanta Siddhanti Maharaj, in the hospital will be feeding him. And they'll be talking and I'll be watching, joking. And Maharaj, he said, "I don't like this place. I want to go back. This is all demoniac, all demons." So I said, "Okay." No, finally, we came back to the new place. And I was rather a little concerned because, I thought the place was, new and, the smell of pain. But he said he wants to be there. And even when he was so sick, devotees came from Vrindavan to visit him. And even as he was lying down in the cane, he sat up. And for about 2-3 hours, he was talking and they were asking questions. He was explaining things. And I was a little concerned because he was not feeling well. But at that time, he was speaking Krishna Katha. It seems he had all the energy in the world. He had the energy in the world. So, in the long run, the next day, I think it was time putting on Reiki or something. So he called us all and he started giving us time. So when he reached my turn, interesting, he wanted to take one to tie. It was entangled. So he just took his hand and took a lot of them and dumped it into my hand. So I still have them. Every time I put one on. So my 6 month of visa was expiring. So I was wondering, should I stay? Then I have to go and,
renew my visa. Then at that time, maybe travel to, Nepal and come back. But when I told Madhava Priya Prabhu, he went to ask Gurudev and he said, oh, you can go. Madhava Priya said, well, it's old age. He will come out of it. And I was thinking, I'll come back and meet him. So then it was, was it August? So, and I flew. The moment I reached, America, then the news came that he has left. So unfortunately, my own dad, when he was passing, I was with him. Today, he was well, and I left. The next day I came, he was dead. The same happened to my Sannyas Guru, my Diksha Guru, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. I was with him, and I said, I have to go. He was feeling better. We were in Govardhan. So I left. And the moment I reached America, he also left. So my misfortune is that I'm not meeting any of them to get their mercy. But I'm just praying that Srila Gurudev, my Sannyas Guru, who had given me his mercy, though I didn't know him that much, I wasn't around. I knew of him. I've been around, but I never associated so much with him. But the literary association I had, he fostered me, into his embrace. And when he gave the name Shanta Maharaj, so I'll tell the story, then when I took Sannyas initiation, he was not feeling well. He was exhibiting his pastimes of being sick. This was in Jagannath Puri. So he was in the room. And after we took initiation, we went to get our, mantras. So he said, what Sannyas name do you want? And I told him, I want you to give me Sannyas, the mantra, the name. Then he looked at me. Madhava Priya Prabhu was there. He looked at me and he said, you are so very peaceful. You are very peaceful. I'll give you the Sannyas name, Shanta Maharaj. So that's how, Madhava Priya Prabhu testified, he gave me the name Shanta Maharaj. So I'm very grateful to him that through him, I'm associating with all of you. And through Madhava Priya Prabhu's mercy, he accepted me to take sannyas. Vancha kapata rivyascha kripa sindhubhyo vacha patitanam pavnabhyo vaishnavabhyo namo namaha. मैंने पढ़ा नहीं हदीस का. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। आज श्रीमन महाप्रभु जी के एक अन्यतम परिकर श्री श्रीमद अभिराम ठाकुर जी का आज शुभ तिरोभाव तिथि है। उनके विषय में जो एक दो बातें मुझे स्मरण है उनको दोहराने का प्रयास करता हूँ। एक तो वैष्णव वंदना में एक बड़ी वैष्णव वंदना है जो कि देवकी नंदन दास ठाकुर ने लिखी है। उसमें लिखा गया है, अभिराम ठाकुर वंदो वंदी बसावधाने, अभिराम ठाकुर वंदी बसादरे, शौल शांगिर कष्ट रे वंशी करी धरे। मतलब अभिराम ठाकुर जी इतने श्रेष्ठ वैष्णव है कि कभी कभी वैष्णव क्या करते हैं, अपना ऐश्वर्य भी प्रकट करते हैं कि वो इस जगत के साधारण व्यक्ति नहीं हैं। तो ऐसे जो अभिराम ठाकुर जी थे जो कि पूरे का पूरा वृक्ष बहुत मोटा लंबा उसको उठा लेंगे, उसकी लकड़ी को पूरा जैसे लट्ठा पूरा लॉग होता है उसको उठा करके उसी को ही वंशी की तरह बजाना आरंभ कर देंगे। इतने बड़े पावरफुल स्ट्रॉन्ग थे श्री अभिराम ठाकुर जी। और इनका एक विशिष्ट था कि ये जब भी यदि किसी ठाकुर जी को प्रणाम, शालीग्राम को प्रणाम किया या किसी विग्रह को प्रणाम किया, यदि वो विग्रह प्रमाणिक नहीं है, यदि वो विग्रह सिर्फ एक बुत है, किसी वैष्णव ने उनकी प्रतिष्ठा नहीं की है या फिर स्वयं अपने भगवान अपने आप से ही विग्रह रूप से प्रकटित नहीं हो गए, या फिर शालीग्राम जो कि नकली शालीग्राम है, पत्थर है, असली शालीग्राम नहीं है, इनके प्रणाम करने के साथ साथ ही वो फट जाएगा। अर्थात वो इनके प्रणाम को सहन कर नहीं पाएगा, अगर नकली होगा तो फट जाएगा वो। इस तरह का इनका एक वैशिष्ट था। इसलिए जो सचमुच में वैष्णव थे अगर वही इनके प्रणाम को सहन कर पाते थे। इसलिए जो लोग अवैष्णव थे वो हमेशा इनसे दूर भागते थे, क्योंकि हमें प्रणाम करेंगे हम कहीं फट जाएं। इसलिए वैष्णव लोग सब समय इनसे दूर ही रहते थे। जो जो इनकी कृपा चाहता है सचमुच में निष्कपट भावना से, वो तो इनकी कृपा प्राप्त कर लेगा, लेकिन जो लोग ढोंगी हैं, नाटक करने वाले हैं, वो सब समय इनसे दूर भागते थे। और दूसरा, इनके पास एक चाबुक था, उस चाबुक का नाम था जय मंगल चाबुक। उस चाबुक के तो इनकी हर एक वैष्णव की अलग अलग विशेषता होती है। यदि इन्होंने किसी को प्रेम प्रदान करना है, ये अपने हाथ से उस चाबुक को किसी को मारेंगे तो उसके अंदर प्रेम का संचार हो जाएगा। प्रेम अर्थात कृष्ण प्रेम, भक्तों के हृदय में जो कृष्ण को दी प्रेम होता है वो वाला प्रेम जो है उनके हृदय में संचारित हो जाएगा। तो एक बार क्या हुआ, श्रीनिवासाचार्य प्रभु जो कि महाप्रभु के एक और परिकर हैं, वो उनकी इच्छा हुई कि उनकी इच्छा थी कि मैं भागवत ग्रंथ पढ़ूं। तो उस समय भागवत ग्रंथ ऐसा नहीं था कि सब समय अवेलेबल हो, तो उसको भक्त लोग क्या करते थे, किसी के पास भागवत ग्रंथ है तो उसको वो अपने हाथों से ही कॉपी करना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि मशीनें थी फोटोस्टेट करवा लो फटाफट से, ऐसा नहीं था, अपने हाथ से लिखना पड़ता था। तो इनको पता लगा कि पुरी में गदाधर पंडित जी हैं, उनके पास श्रीमद् भागवतम है। जब उनके पास श्रीमद् भागवतम ग्रंथ लेने गए तो गदाधर पंडित जी सब समय महाप्रभु के विरह में विवल रहते हैं। सब समय जैसे ही भागवत खोलते हैं उनकी आंखों से अश्रुपात होता है, तो भागवत जो है अश्रुओं के कारण भीग गई, तो उसको पढ़ना जो है अच्छी से संभव नहीं था, बहुत सारे अक्षर मिट गए उसमें से। तो फिर उसके बाद इनको एक पता लगा कि अभिराम ठाकुर जी हैं, इधर गौरमंडल में ही उनका स्थान है कहीं, तो वहां पर उनके पास श्रीमद् भागवतम है। जब श्रीनिवासाचार्य जी उनके पास गए, उनको देखते सारी अभिराम ठाकुर जी ने, जब उन्होंने प्रणाम किया अभिराम ठाकुर जी को, तो अभिराम ठाकुर जी ने क्या किया, उनको चाबुक मारे। 3 बार चाबुक मारने के बाद उनके अंदर इतना प्रेम संचालित हो गया कि उनकी जो धर्म पत्नी थी अभिराम ठाकुर जी की, वो आगे आ गई, प्रभु आप इनको और मत मारो, ये भी बच्चा है और इतना प्रेम इस शरीर पे सहन नहीं कर पाई तो मर जाएगा, इसलिए आप इनको प्रेम अभी और चाबुक मत मारो। इस तरह से दिव्य एक तरीके से क्या करते थे, ये सबको अपने चाबुक के द्वारा प्रेम प्रदान करते थे। इस तरह ये दो कुछ बातें स्मरण थी उनके विषय में आपके सामने व्यक्त की। वांछा कल्पतरु वैष्ण कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
दूसरा नहीं, वही वाला सुनो बताया। हम लोगों ने अभी नरोत्तम प्रभु से श्रवण किया श्री अभिराम ठाकुर जी के जो महिमा है उनके बारे में श्रवण किया। तो उनके महिमा में ये बताया कि श्री अभिराम ठाकुर शुभ तिरुभाव तिथि। अभिराम ठाकुर जी कौन थे? चैतन्य महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु के परिकर, उसी समय के चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इत्यादि के साथ में ही रहते थे, उनके परिकर। नाम है श्री अभिराम ठाकुर। रहते कहाँ पर थे? उनका नाम बताया, जिस जगह पर रहते थे उस जगह का नाम है खानापुर, एक स्थान का नाम, वहां पर वो रहते थे। उनकी पत्नी थी मालिनी देवी, वो भी बहुत बड़ी भक्त, बहुत बड़ी भक्त। अभिराम ठाकुर जी भी बहुत श्रेष्ठ परिकर। फिर आप बताओ कौन सी बात? तो नरोत्तम प्रभु ने जैसे कि अभी बताया कि सभी जो वैष्णव लोग होते हैं, भगवानेश्वर भक्त होते हैं, उनकी कुछ विशेषताएं होते हैं। तो श्री अभिराम ठाकुर जी की विशेषता ये थे कि वो अगर किसी मंदिर पे जाते हैं जहाँ पे ठाकुर जी के विग्रह होते हैं, और विग्रह के साथ हम लोग देखते हैं यहाँ पर भी हमारा शालिग्राम शिला है, तो वो शालिग्राम शिला क्या है? साक्षात विष्णु भगवान के एक स्वरूप है। तो ऐसे तो शालिग्राम शिला मतलब दिखने में सेम होंगे, और मतलब वो वास्तविक रूप से शालिग्राम नहीं है, उसमें विष्णु भगवान का जो साक्षात स्वरूप वाला जो शालिग्राम है वो नहीं है। अगर वो नकली वाला शालिग्राम है तो उसमें अगर श्री अभिराम ठाकुर जी प्रणाम कर देते हैं तो वो शालिग्राम शिला और वो विग्रह भी साथ साथ फट जाते थे। क्योंकि समझ आया बताना क्या बोला? शालिग्राम फट जाते थे। क्यों? सह नहीं पाते थे। क्यों? प्रणाम क्यों नहीं सह पाते उनका परिणाम? अगर शालिग्राम शिला जो वास्तविक रूप में शालिग्राम होती है उसको प्रणाम करते हैं, वो अपना उनका परिणाम स्वीकार करती है, वास्तविक शालिग्राम शिला। क्यों? क्योंकि उसमें कौन है? भगवान। वही भगवान है, शालिग्राम शिला ही भगवान है, तो इसीलिए वो तो उनका परिणाम स्वीकार कर पाते हैं। अर्थात ये इतने प्रभावशाली हैं कि इनका प्रणाम भी स्वीकार करने के लिए कैसा वाला वो चाहिए? व्यक्तित्व बहुत श्रेष्ठ वाला। तो अगर तो शालिग्राम शिला वास्तविक रूप में शालिग्राम शिला है, उसमें भगवान का अधिष्ठान है, तब तो वो उनके प्रणाम को स्वीकार कर लेते थे, मतलब फिर इनको आशीर्वाद देते थे। और अगर शालिग्राम नकली हुआ तो क्या होएगा? वो शालिग्राम ही फट जाएगा। उससे क्या पता चल जाएगा कि इन्होंने प्रणाम किया, वो प्रणाम स्वीकार करने के योग्य नहीं था, इसीलिए वो फट जाएगी। ये वाली एक बात बतलाई। आप हम लोग कोई प्रणाम करें शालिग्राम शिला को, पता चलेगा कौन सी शालिग्राम शिला है? नहीं पता चलेगा। उनका प्रभाव ऐसे वाला। और आगे बताए थे कि वैष्णव में भी अलग अलग पहचान होते हैं, वैष्णव का भी एक स्तर होते हैं। तो उसमें अगर कोई वास्तविक रूप में वैष्णव नहीं है, बस बाहर से उन्होंने बाह्य वेश बना लिया धोती तिलक कुर्ते में, तो वो अगर वास्तविक रूप में वैष्णव नहीं है तो वो लोग भी इनके प्रभाव के बारे में जानते थे, श्री अभिराम ठाकुर जी के बारे में। तो इसीलिए वो लोग क्या करते थे? वो लोग दूर भागते थे, उनके सामने नहीं आते थे। किस लिए दूर भाग रहे? वो फट जाएंगे। नरोत्तम प्रभु ने ऐसा ही बोला था। मुख्य बात बतला रहे हैं, देखो क्या लिखा हुआ है इसमें। अभिराम गोस्वामीर प्रताप प्रचंड
जारे देखी कांपे सदा, दूर जाए पाषंड। जो अच्छे वाले लोग नहीं हैं, वो इनके सामने आने पर अपनी आप भयभीत होने लगते थे, कांपने लग पड़ते थे। किंतु इनके प्रणाम को स्वीकार किया था। जानवा ठाकुरानी को इन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने प्रणाम स्वीकार करके इनको आशीर्वाद दिया था। और नित्यानंद प्रभु के पुत्र वीर चंद्र प्रभु, उनको भी इन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने भी प्रणाम स्वीकार करके आशीर्वाद जैसा कर दिया। किंतु सभी लोग इनका प्रणाम नहीं ले पाते थे। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध आचरण वाला नहीं होगा, कपटी होगा, धूर्त होगा, तो इनको ये अगर सामने पड़ेंगे, वो अपनी आप से उसकी जान निकलने लग जाएगी। उस प्रकार से उसको अनुभव होने लग जाता था। इसीलिए इनके सामने वो व्यक्ति रहते नहीं थे, इधर उधर हो जाते थे। इस प्रकार का उनका चरित्र था। स्मॉल क्राउड, एवरीबॉडी हियर्स। और दूसरी बात ये बताएं कि उनके पास एक चाबुक होते थे, तो वैष्णव लोग जैसे प्रसन्न होते हैं तो किसी को आशीर्वाद दे देते हैं, तो उनका आशीर्वाद या कृपा करने की जो पद्धति है वो कुछ इस प्रकार से थे कि वो उस चाबुक से उस व्यक्ति को जिसके ऊपर प्रसन्न होते थे तो उनके ऊपर प्रहार करते थे, और उसी प्रहार से उसमें कृष्ण प्रेम का संसार होते थे। चाबुक समझते हो तो सारे लोग चाबुक पड़ता है। चाबुक मारना अच्छी चीज है। सारा कुछ इनका विचित्र है ना, कैसे वाले हैं। देखो वैष्णव हैं, इनके पास में है चाबुक, और वो चाबुक किसको मारेंगे? जिनके ऊपर प्रसन्न, जिसके प्रति बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, जिनमें देखते हैं बहुत अच्छे गुण हैं, जिनके प्रति प्रसन्न हो जाते हैं, उनको फिर चाबुक से पिटाई लगाते हैं। और जितना अधिक चाबुक मारेंगे उतना अधिक एक व्यक्ति क्या होएगा? और अधिक प्रेम में निमग्न हो जाएगा, उसमें कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। वो व्यक्ति सारी सुध बुध खो बैठेगा, नृत्य करने लगेगा, गान करने लगेगा, जमीन में लोटपोट खाएगा, कृष्ण कृष्ण कह करके विलाप करने लगेगा। इस प्रकार से उसकी दशा हो जाएगी, जिसको क्या करेंगे? चाबुक मारेंगे। 3 चाबुक मार दिए थे इन्होंने श्रीनिवासाचार्य जी को। 3 चाबुक जब मारे, अभी चौथा मारने जा रहे थे, तो उनकी पत्नी ने हाथ पकड़ करके रोक दिया कि प्रभु और इस बच्चे को चाबुक नहीं मारना, ये सहन नहीं कर पाएगा। अभी आपने अगर चौथा चाबुक मारा, इतना प्रेम इसके भीतर में आएगा कि इसके प्राण चले जाएंगे। तो उसको वो वाला प्रेम धारण करने के लिए अलग प्रकार की अवस्था चाहिए। अभी आप इसको ऐसे वाला और चाबुक मत मारो, तब फिर उन्होंने वो चाबुक मारना रोक दिया था। तो इस प्रकार से उनके पास में ये चाबुक था विशेष, जिसको भी मारेंगे उसमें क्या आ जाएगा? कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। प्रभु जी, एक कथा ना थोड़ा सा पूरा याद नहीं आ रहा है। तो वो जब बाल्यावस्था में थे, तो उनके पिताजी उनको कहीं लेकर जाते थे, तो देवी के मंदिर थे जिसमें बताए थे कि आप प्रणाम करो यहाँ पर। इन्हीं के ये वाला कथा प्रभु जी आप बताए, थोड़ा सा हम मेरे को स्मरण नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ तो था, मेरे को भी स्मरण नहीं आ रहा। इसमें उस तरह से लिखा नहीं है, अभी यहीं पर ही रख लेते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री अभिराम ठाकुर की जय, उनकी शुभ तिरोभाव तिथि की जय, तिथि पालनकारी समस्त भक्त वृंद की जय।
गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आपने वो वाला तो बताया नहीं, बांसुरी बजाने वाला। ब्रज लीला में सुबल सखा, हाँ जी ना, इनका भी वही लिखा हुआ तो श्रीदाम, श्रीदाम सखा अभिराम, अभिराम ठाकुर इज श्रीदाम सखा, स्पीकिंग अबाउट हिम। And when we bow down, everybody keep their duties. I want you to start properly and pray.